میں ابھی آپ کو لے کے جانے والا ہوں ابوا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر۔ اب بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا ہوں۔ یہ قبر پاک ہے، قبر مبارک ہے، یہ پاک جگہ ہے اس ہستی کی جس کو شرف حاصل ہے کہ وہ خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الرسل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام کی یہ والدہ ہیں۔ یہ محترم ہستی، مقدس و پاک ہستی، یہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی ہے، سیدہ آمنہ بنت وہب۔ ان پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ میں ابوا میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر آنا کافی مشکل ہے۔ یہ قبر پاک سیدہ آمنہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب الصلاۃ والسلام کی زوجہ اور جناب رسول خدا الصلاۃ والسلام کی والدہ تھی۔ جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمنہ، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمنہ، تم یہ مقام مدینہ اور مکہ کے تقریباً وسط میں پرانے مدینہ روڈ، جس کو اب بدر روڈ کہا جاتا ہے، اس پہ واقع ہے۔ ابوا کے مقام پر مین روڈ سے یہ اندر کی طرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 260 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ بالکل سنسان ہے اور یہ سنگل روڈ ہے، یہاں پر کوئی زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی، اور خاص کر یہ جو پہاڑات ہیں یہ بالکل سڑے ہوئے، بغیر سبزے کے اور بغیر چرند پرند کے ہیں۔ سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ مظلوم ہستی ہیں کہ ان کی قبر کے پاس نہ کسی کی قبر ہے، نہ کوئی پاس میں آبادی ہے، اور نہ ہی کوئی اور آسرا ہے یہاں پر۔ جب یہاں پر آتا ہے تو ہر طرف انسان کو خون کا عالم دکھتا ہے، ہر طرف سناٹا اور خاموشی ہے۔ آپ کی خامد جناب عبداللہ بن عبد المطلب الصلاۃ والسلام مدینہ میں دفن تھے۔ آپ ان کی زیارت کی غرض سے مدینہ میں گئی، کیونکہ آپ کے والدین بھی مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ تو جب واپسی پر آپ اس مقام پر پہنچی تو اس ٹائم آپ کے ساتھ آپ کی ملازمہ خادمہ جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب رسول خدا تھے۔ جب اس مقام پر پہنچی تو آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں، کیونکہ نیچے نشیبی علاقہ ہے اور بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو حفاظت کے پیش نظر اس پہاڑ کے اوپر دفن کر دیا گیا۔ میرے پیچھے جتنے بھی یہ پھول بکھرے ہوئے ہیں نا، یہ والے سارے، یہ جو پھول سارے بکھرے ہوئے ہیں، یہ بی بی آمنہ پاک کی قبر ہے۔ یہ جو آپ پورا ایریا دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا جہاں پہ یہ پھول بکھرے ہوئے ہیں سارے، یہ پورا ایریا جو ہے یہ بی بی پاک کی قبر مبارک ہے، پاک قبر مبارک، مقدس ہستی جناب سیدہ آمنہ بنت وہب۔ میں نے یہاں پر جو ہے یہ آیتوں والا جو ہے گلاس رکھا ہے، لیکن باقی جو ہے ہو سکتا ہے یہ جو 3 پتھر ہیں یہ قبر کے بالکل سینٹر میں ہوں،
لیکن اب ऑथेंटिक नहीं इसके बारे में पता चल सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने एरिया पे मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर इतने एरिया पे ही मैंने देखा इसके इर्द गिर्द या पत्थर होते हैं, इसके इर्द गिर्द या यहीं पर फूल बिखरे होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले तो यहाँ पर ऊपर गुंबद था, तो ये जो है सईदा आमना बिनते वहब सलामुल्लाह अलैहा की ये कब्र है। तो कब्रों की ज़ियारत करना शिरक नहीं है, हम अपने कब्रों पे नहीं जाते क्या? ये तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक वालदा की कब्र है, जिनकी ज़ियारत के लिए आप खुद आते थे। हुदैबिया के मौके पर भी आप यहाँ पर आए थे और इतना शदीद रोए थे, अगर कोई मुसलमान देख लेता तो उसका दिल फट जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे थे जब हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया जब हुआ था मक्का में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे। मैंने बहुत दुआएं की कि या अल्लाह मुझे बीबी पाक की कब्र की फिर ज़ियारत करा। मैं पिछले महीने भी आया था, लेकिन उस टाइम मैं यहाँ करीब नीचे आया, लेकिन मैं ऊपर तक नहीं आ सका, कोई वजह हो गई, मैं ज़ियारत नहीं कर सका, शायद अल्लाह ताला को उस टाइम मंजूर नहीं था। अभी 1 महीने के बाद मैं फिर दोबारा यहाँ पर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। आज 10 रमज़ान मुबारक है, जनाब सईदा खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात का भी दिन है आज, तो ये भी बीबी से तज़ियत करने आया हूँ। दूसरा रमज़ान मुबारक है, आज दूसरा जुम्मा मुबारक है, तो अल्लाह ताला ने शायद इसी दिन के लिए मुझे उस टाइम यहाँ पर आने की तौफीक नहीं दी। जब मैं पिछले महीने यहाँ पर आया था तो पीछे से मुझे रोक दिया गया, मैं फिर आगे तक नहीं आ सका। इस जगह की लोकेशन आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगी। आप उर्दू, इंग्लिश या अरबी में कब्र मुबारक सईदा आमना बिनते वहब लिखें तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ऊपर तक जाना एक दूसरा मरहला है। ग़ज़वा ओहद के मौके पर जब कुफ़ारे मक्का बदला की गरज से मदीना पर हमला आवर होने जा रहे थे, तो इस मकाम पर जब उनका काफिला रुका तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया था, उसने इस जगह पर जनाबे आमना की कब्र खोदने का मशवरा दिया था। लेकिन कुफ़ार ने इस मशवरे को रद्द कर दिया इखलाकी बुनियादों पर कि इससे फिर कब्रों को उखाड़ने की रस्म जो है वो शुरू हो जाएगी। सईदा आमना कबीला कुरैश से थी। इनके वालिद जनाब वहब कुरैश की बड़ी शाख बनी ज़ोहरा के बुजुर्ग थे। इनकी वालदा जनाब बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा भी कुरैशी थीं। आप हिजरत से 46 साल क़बल मक्का में पैदा हुई। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। मेरा बच्चा खास है, वो खेलता है। जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर आपका बीबी की कब्र पर जाना और वहाँ पर शदीद गिरिया करना, रोना तारीख के सफ़हात पर दर्ज है। 4 हस्तियों की कब्र पर उनकी ज़ियारत पर जाने से आप अस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश होते हैं और जल्दी नज़र करम कर देते हैं। और ये चारों जगह कबूलियत की जगह हैं, बहुत जल्दी दुआ मुस्तजाब होती है। उनमें जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदफून जन्नतुल मौला मक्का, जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदफून जन्नतुल बकी मदीना, जनाब हमज़ा सैयदुश शुहदा मदफून मकाम ओहद, और जनाब बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा मदफून अबवा। मक्का मदीना रोड, जिसे बदर रोड कहा जाता है, उससे जब आप अबवा के मकाम पर पहुँचें तो जैसे ही आप मेन सड़क से नीचे की तरफ उतरेंगे, छोटी सड़क सिंगल तरफ सड़क पर आएंगे तो मेन सड़क पर सिर्फ एक ही बोर्ड अबवा का आएगा। वहाँ से 16 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपके राइट हैंड पर उम्मे बल्कीस नाम का छोटी सी बस्ती आएगी। ये बस्ती बिल्कुल ओपोजिट है बीबी आमना की कब्र के, जिस पहाड़ पर कब्र, ये पहाड़ के बिल्कुल ओपोजिट है। रोड के ऊपर ये बोर्ड लगा है, एक छोटी सी सफ़ेद कलर की मस्जिद है। आप लोगों ने गाड़ी जो है वो वहाँ पे बिल्कुल पार्क नहीं करनी, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके जाके आधा किलोमीटर थोड़ा सा आगे कहीं छुपा के आपने रोड से खड़ी करनी है, ताकि दूर से किसी की नज़र में गाड़ी ना आए। और कोशिश करें कि पहाड़ों के बैक से जो है आप जाएं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, आप इजी जो हैं इस जगह को तलाश कर सकते हैं। ऊपर जाके लोगों के पैदल चलने से पगडंडियाँ बनी हुई हैं, जैसे आप इसमें आप वीडियो में भी आप देखेंगे कुछ पगडंडियाँ मैंने दिखाई हुई हैं। हमको ईमान